Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to derive here equations of motion, but for a body which is moving with uniform acceleration in a straight line or in one dimension. Dear students, this question is very important so far as board exams are concerned. I have seen so many times this equation, the derivations of these equations there in the previous papers. So dear students, I am going to derive these equations, but I have to use here calculus method. There are different methods for this. There is ordinary simple mathematical approach for this. There is a graphical method to derive this. I have already derived this by graphical method, but today I am going to derive these equations by using calculus method. That is, dear students, I will use here differentiation and integration. But dear students, again in the calculus method here, in this method beta यहाँ भी दो तरीके हैं. Here are two methods. One is we can use here definite integration, or we can use here indefinite integration. First of all, I will derive these by using definite integration, and then after that I will derive these by using indefinite integration. Why reason is that? Because this approach, the different approach of deriving these equations will help you in solving the numericals. That is how to use definite integration there in the numericals, and how to use indefinite integration there in the numericals which are related to differentiation and integration. Hope dear students you will listen without wasting your time. Let us first of all derive first equation of motion, that is b is equal to u plus at. But for a body which is moving with uniform acceleration, तो बेटा पहली क्या है यहाँ लिखना है पहली. What is the first equation here dear students? That is derive. क्या करना है? derive dear students, b is equal to u plus at. ये derive करने. This is first equation of motion, but for a body which is moving with constant acceleration in one dimension or in a straight line. तो बेटे v क्या है? v is final velocity and u is initial velocity and a is acceleration. Here it is constant and t is time taken during the process. Okay dear students, these have usual meanings. Now I will derive this. See dear students, the derivation of this equation is derive this. Derive by यहाँ लिखा होगा calculus method. Derive by what method? Calculus method. That is use differentiation and integration. Derive v is equal to u plus at by calculus method. तो बेटे derivation क्या आएगी इसकी? Derivation, see dear students, derivation क्या आएगी इसकी? The derivation of this question is like this dear students. We know, देखो बेटे क्या है? We know, हमको पता है. क्या पता है हमको कि acceleration किसके बारे में है? Rate of change of velocity with respect to time. Instantaneous acceleration. The definition of instantaneous acceleration की क्या होती है? This is instantaneous acceleration. That is, it is equal to rate of change of velocity with respect to time. Any problem there? No, not at all. Sir, no problem. तो यहाँ डिवाइड करेंगे वन, तो बेटा dv वन जार dv, और बेटा यहाँ a इंटू dt क्या आएगा? a इंटू dt. dv वन जार dv और a को इसके साथ जरा देंगे तो ये आएगा a dt. Hope you have got this. See dear students, very easy, very easy. See dear, अब यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? dv is equal to a dt. अब क्या करेंगे बेटा? देखो क्या है यहाँ, देखो बेटा क्या है एक्चुअली ऐसे जा रही है. यहाँ मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको. Since the body is moving in a straight line or in one dimension, 1D में चल रही है, straight line में चल रही है, both are same. कोई 1D लिखेगा, कोई straight line motion लिखेगा, दोनों both are same. देखो बेटा क्या, 1D are straight line motion, but A remains here constant. Keep this thing in mind. देखो बेटे क्या है, suppose मैंने यहाँ ले लिया, ये यहाँ पॉइंट है यहाँ x axis, that is the body is moving along x axis. See here, let the body, I am observing motion from this time, that is I am taking time t is equal to 0 here. Let the body has initial velocity u, that it is already in motion. It has started motion, it is already in motion, and I am observing this at point A, and let at point A I am observing this, taking t is equal to 0 at point A, let it has initial velocity u. बेटा t at is equal to 0, मैंने यहाँ ऑब्जर्वेशन की, ऑलरेडी मोशन में है, लेकिन मेरे लिए यहाँ जब मैंने ए पॉइंट पर बॉडी को ऑब्जर्व किया तो मेरे लिए यू जिस यहाँ वेलोसिटी इसकी क्या मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी है कि मैं यहाँ से मोशन मैंने ऑब्जर्व की. तो लेट आफ्टर टाइम टी इट रीचेस टू पॉइंट बी. यहाँ बेटा ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u एट टाइम t इज इक्वल टू 0. लेट आफ्टर टाइम t इट रीचेस टू पॉइंट
B covering a distance s, और बेटा it moves with a constant, a क्या रहा constant, and occurs a final velocity v here but after a time t at this is at point B. Hope you have got this. बेटा समझ में आया? यहां से ऑब्जर्वेशन की मैंने, मेरी मोशन, माई मोशन इज फ्रॉम ए टू बी, the body is already in straight line motion. For me at time t is equal to 0, it is initial velocity is u, जो इसकी velocity है इस वक्त a पर, वो मेरे लिए initial velocity है u. Let after time t, because I am observing motion from a to b, after time t the body reaches to point b and acquires a final velocity v. But during this motion it covers a distance s from, कहां से कहां तक बेटा? It covers a distance s from यहाँ a to b, और यहाँ एक्सेलरेशन क्या रहती है? कांस्टेंट. एंड टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक t? देखो, let this is at this point a is at a distance x naught from o and b is at a distance x from this o here. Okay, have you got this? Okay, now it is very easy. तो dv किसके बराबर है? adt integrating both sides. अब क्या करेंगे बेटा? integrating both sides, but यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट्स यूज करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहां भी इंटीग्रेशन ले लो बेटा, और बेटे यहां भी इंटीग्रेशन. ठीक है, कहां से कहां तक? लिमिट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करनी है बेटा, तो लिमिट्स लेंगे. यहां देखो लिमिट्स क्या है, कहां से कहां तक? यहां dt में है इंटीग्रल, तो टाइम कहां से लेंगे? t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t. तो यहां टाइम लूंगा t इज इक्वल टू 0 टू t, क्योंकि इंटीग्रल किस में है? dt में है. That is, I am observing motion from A to B at a point A. I am taking my time is 0, and at this point initial velocity क्या है? u, and at point B final velocity क्या है? b. देखिए टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक? t. तो बताइए कहां से कहां तक मोशन है? A to B, तो 0 to t dt में है इंटीग्रल. लिमिट जैसे कि जहां हो ना लिमिट बेटा, ऐसे यहां जैसे इंटीग्रल हो, इंटीग्रल किस में है? dt में. तो टाइम यहां लिमिट भी ले लो टाइम में, 0 to t. अब यहाँ dv, यहाँ क्या थी? एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी में है तो यहाँ u, फ्रॉम u टू कहां से कहां तक? फाइनल इज v, बिकॉज यहाँ इंटीग्रल dv में है. ओके, वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन, वेरी नाइस. तो ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, और लिमिट इज क्या है? फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू a इज कांस्टेंट हियर, तो ये बाहर आएगी, तो बेटा यहाँ लिखिए 0 टू t किसकी? dt. और ये क्या आएगा बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल. डेफिनेट इंटीग्रल यूज करने हैं ना बेटा, ये डेफिनेट इंटीग्रल मैंने यूज किया. v माइनस u फाइनल, सॉरी, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a, और dt क्या आएगा? t. तो क्या लेंगे लिमिट? 0 टू t. अपर, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. ओके, वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन. तो ये क्या आएगा बेटा? देखो, v माइनस u इज इक्वल टू a, यहाँ शॉर्ट ब्रैकेट लिखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, शॉर्ट ब्रैकेट. तो ये v माइनस u इज इक्वल टू a, t माइनस 0 तो t है, तो इंटू लिखेंगे t. तो डियर फोर बेटा v किसके बराबर आएगा? ये माइनस u यहां चला जाएगा, तो क्या आएगा? ये बनेगा प्लस u, और यहाँ a t. व्हाट इज दिस? दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. होप यू हैव गॉट दिस. वेरी नाइस, वेरी इजी टू रिमेंबर फॉरएवर. लेकिन मैंने डेफिनेट इंटीग्रल यूज किया या इनडेफिनेट? डेफिनेट किया, क्योंकि लिमिट्स में नहीं लगाए यहाँ, तो लिमिट्स जब भी लगाए वो डेफिनेट इंटीग्रल है. ठीक है ना? ओके डियर. तो अब क्या है? नेक्स्ट इज डिराइव x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. तो दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा? शाबाश शाबाश स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा है ना? आसान है बेटा. तो दूसरा क्या है? दूसरी इक्वेशन क्या है? डिराइव. क्या डिराइव करो? क्या डिराइव करो? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. लेकिन कौन सा मेथड? बाय कैलकुलस मेथड. बाय बेटा लिखो यहाँ कैलकुलस मेथड यूज करो. दैट इज बेटा यूज करो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. लेकिन मैं करूंगा यहाँ इंटीग्रेशन डेफिनेट, फिर इसके बाद इंडेफिनेट समझाएंगे आप लोगों को. देखो बेटा क्या है, देखो तमाशा बेटा. देखो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहाँ 1D मोशन कहो या स्ट्रेट लाइन मोशन, नो प्रॉब्लम. देखो बेटे क्या है, देखो अब डिराइव क्या करना है? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 बाय कैलकुलस मेथड. तो इसकी डेरिवेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन क्या है बेटा? देखो क्या है, वी नो. क्या पता है आप लोगों को? वी नो. क्या डियर स्टूडेंट्स पता है? s किसके बाद होता है? s
नहीं, वेलोसिटी वेलोसिटी किसकी बात है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा यहाँ डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे ना 1, तो इसको इसके साथ जरा दो और इसको इसके साथ जरा दो, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डियर स्टूडेंट्स। तो ds वन और ds और यहाँ v इंटू डी टी आ गया v dt। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कहां से कहां तक लिमिट्स लगाने हैं? यहां देखो बेटा, यहां इंटीग्रेशन मैंने ds की और यहां किसकी इंटीग्रेशन बेटा? v dt, क्योंकि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां भी मैंने सांप लगा दिया और यहां भी सांप लगा दिया। सांप का मतलब है समेशन और समेशन का मतलब है इंटीग्रेशन। ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग दिस। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बताया बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds किसके बराबर? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब लिमिट्स लेने हैं, देखो क्या है, ds कहां से कहां तक? ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट में इंटीग्रल, लेकिन यहां इंटीग्रल है टाइम में। तो यहां डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ही बेटा लगाने हैं लिमिट्स, यहां टाइम के हिसाब से ही लगाने हैं लिमिट्स। तो दे दो लिमिट्स ds के हिसाब से। यहां ये ds कहां से कहां तक? a टू b है, मोशन इज फ्रॉम a टू b पॉइंट। तो s है ना, ये s कितना है? दैट इज यहां से यहां तक, ऑरिजिन से यहां तक कितना है? x। और यहां से यहां तक कितना है? x नॉट। तो x माइनस x नॉट किसके बराबर आएगा? s। तो लिमिट्स क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे बेटा ds। यहां लोअर लिमिट है, ये कितनी दूरी पर है? ये पॉइंट ये x नॉट। और ये बी पॉइंट कितना दूर है यहाँ ऑरिजिन से? x। तो ये x लेंगे इज इक्वल टू x नॉट टू x नॉट टू x, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम लोअर लिमिट x नॉट टू x इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिमिट्स लगाने हैं? dt में है, यहाँ x नॉट पर t क्या है? 0। यहाँ बेटा x पर टाइम क्या है? t, क्योंकि इंटीग्रल dt में है ना, तो v dt लिखेंगे, v dt लिखेंगे। ओके, वेरी नाइस, आसान है ना बेटा? हाँ बच्चों, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान, बहुत आसान। लेकिन देखो बेटे क्या है, एक बात मैंने की, एक बात, एक फिर बाद में करेंगे। ओके, बाद में करेंगे, थोड़ा थोड़ा बाद में करेंगे बेटा, थोड़ा यही करना है। लेकिन यहां सब्स्टिट्यूट पहले देना था बेटा। देखो क्या है, पहले यहां है ना ds इज इक्वल टू v dt बेटा, है ना? क्या है? ds इज, यहां निकल आया था, क्या निकल आया था? यहां जब हमने बेटा लिखा था ना v इज इक्वल टू ds बाई dt लिखा ना, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt वी नो। तो यहां ds माइनस और वी नो ऐसे लिखो बेटा डेरिवेशन, नो प्रॉब्लम। अगेन लिखो डेरिवेशन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। डेरिवेशन क्या आएगी? डेरिवेशन वी नो, v इज इक्वल टू ds बाई dt, यहां डिवाइड मैंने 1 किया, ds माइनस और ds, तो बेटा v इंटू dt v dt। ओके, वेरी नाइस। तो यहां अब क्या है? ds माइनस और ds v dt। इसकी लिखो फर्स्ट इक्वेशन, वी नो नाउ। क्या बेटा पता है आपको? वी नो क्या पता है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यही मुझे मैं बैद में भी इसको सब्स्टिट्यूट करता है, लेकिन बेटा मैंने यहाँ पहले सब्स्टिट्यूट करो, आसान, इसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, बाकी यहाँ क्वेश्चन ठीक चल रहा था। तो वी नो बेटा, क्या वी नो? v किसके बराबर है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, बिकॉज दिस इज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ नंबरिंग दे दो सेकंड, क्योंकि मैंने पहले की नंबरिंग फर्स्ट ले ली और दूसरे की सेकंड। तो सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट लगा दो बेटा। सब्स्टिट्यूट क्या करो? सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, किसके बदले? इस v को यहाँ किसके, यहाँ लगा दो, ये यहाँ करो सब्स्टिट्यूट। देयरफॉर ds किसके बराबर आएगा? ds v के बदले क्या लिखेंगे आप? u प्लस ए टी। और बेटे यहाँ क्या है अपना? v के बदले लिखा मैंने u प्लस ए टी, और बेटे यहाँ अपना है dt। ओके, वेरी नाइस। तो क्या करेंगे आप? आप कर दो इंटीग्रेशन, लगा दो, आप इंटीग्रेशन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या करो आप बेटा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहां भी इंटीग्रेशन लगा दो ds, और यहां भी इंटीग्रेशन, क्या? u प्लस ए टी, और बेटा यहां है dt। लेकिन अब लिमिट्स ds कहां से कहां तक है? दिस इज फ्रॉम a टू b, दैट इज फ्रॉम, यहां a x नॉट दूरी पर है और b कितना है? x। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा? x नॉट टू x। क्यों? क्योंकि मोशन इज फ्रॉम a टू b। तो a पर बेटा कितनी दूरी पर है? ये ऑरिजिन से ये x नॉट की दूरी पर है। तो B पॉइंट कितना दूर है ऑरिजिन से? x की। तो कहां से कहां तक जाना है? फ्रॉम दिस टू दिस, दैट इज फ्रॉम x नॉट टू x नॉट टू x। और यहां टी में, लेकिन x नॉट पर टाइम कितना है? इस पॉइंट पर यहां 0, क्योंकि यहां टाइम में है। और बेटा यहां कितना है? इस x पर यहां कितना है? कितना टाइम है यहां? t। तो बेटा यहां t लिखेंगे, t, क्योंकि इंटीग्रल dt में है। ओके, इजी।
टफ है बेटा? नहीं, टफ कुछ भी नहीं, आसान है बेटा, आसान, समझ लो बेटा। तो ds किसके बराबर आएगा? s। तो लिमिट इसके है x नॉट x, और बेटा यहाँ क्या, यहाँ दो इंटीग्रल बनेगी बेटा, दो, एक तो 0 to t u dt प्लस 0 to t a t dt लिखेंगे। 0 to t एक इंटीग्रल u और dt प्लस दूसरा इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल क्या, 0 to t a t dt। ओके, वेरी नाइस। दो इंटीग्रल बनाए, क्या बनाए बेटा? देखो 0 to t u dt, 0 to t u dt प्लस क्या लिया, प्लस फिर बाद में ले लिया बेटा, ये t है, यहाँ ये t है, ये t है, प्लस क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t a t dt। ओके, यह है व्हाट इज नो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? x माइनस x नॉट, शॉर्ट ब्रैकेट लिखो आप। अब बेटा क्या है, u, ये इंटीग्रल dt में u को बाहर करो, u, क्योंकि इंटीग्रल किस में वेरिएशन आ रही है ना, यहाँ देखो dt में इंटीग्रल, तो बेटा यहाँ u को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, लेकिन dt, लेकिन प्लस बेटे यहाँ किसको, यहाँ a कांस्टेंट है लेकिन t इज वेरिएबल, तो यहाँ t ऐसे ही रहेगा, लेकिन a को आउटसाइड निकालो, a, और यहाँ क्या है 0 to t, लेकिन बेटे इंटीग्रल किसमें है? dt dt, t dt किसमें है? इंटीग्रल t dt। तो बेटा देखो, देखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना? हाँ है सर, बहुत आसान। तो x माइनस एक्स नॉट बेटा किसके बराबर आएगा? x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ u, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर आएगी? t, लेकिन लिमिट्स क्या है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या है बेटा? t, लेकिन लिमिट्स क्या है? यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लिखो 0 to t प्लस बेटे यहाँ के a, तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या आएगी? बताया, बहुत बार मैंने बताया क्या है इंटीग्रेशन ऑफ t dt। ऐसे बेटा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx किसके पावर होती है? x 1 प्लस 1, यहाँ 1 पावर होता है, डिवाइड बाय 1 प्लस 1, वही होता है x स्क्वायर बाय 2। तो सेम बेटे यहाँ सेम इज द केस हियर, लेकिन x के बदले क्या है यहाँ? यहाँ बेटे x के बदले t dt। पता t dt किसके बराबर आएगा? t dt t स्क्वायर बाय 2, t dt आएगा यहाँ x dx x स्क्वायर बाय 2, t dt क्या आएगा? t स्क्वायर बाय 2। तो बेटे क्या लिखेंगे? t dt के बदले t स्क्वायर बाय 2, लेकिन लिमिट्स क्या है? कहां से कहां तक लिमिट्स? 0 to t। होप यू हैव गॉट दिस। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ मिटाएंगे? हाँ सर मिटा कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? हाँ, सब कुछ समझ में आया। ओके, वेरी नाइस। तो x माइनस एक्स नॉट क्या है? ये एक्चुअली s है ना, यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक x नॉट, तो x माइनस एक्स नॉट s के बराबर, ये s के बराबर। और यहाँ के u ऐसे आप ये शॉर्ट ब्रैकेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ये 2 बाहर करो, क्योंकि ये है ना, यहाँ इसको बाहर करो, a डिवाइड बाई 2, लेकिन अंदर क्या रहेगा बेटा? t स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ 0 to t। ओके, यू हैव गॉट दिस। तो s किसके बराबर है? ut प्लस बेटे a बाई 2, तो बेटे यहाँ किसके बराबर आएगा? c स्टूडेंट्स। तो यहाँ शॉर्ट ब्रैकेट लिखो, अब t के बदले t स्क्वायर, दैट इज अपर लिमिट माइनस फार्मूला का माइनस, और अब लोअर लिमिट क्या है? 0, और लेकिन स्क्वायर है। ओके, अब शॉर्ट ब्रैकेट लिखो, तो s किसके बराबर आएगा? ut प्लस ये आएगा बेटा a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 0। तो बेटा s इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? शाबाश, ut प्लस ये आएगा a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0, तो वो तो t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर। तो therefore we have derived this equation of motion, that is what is this बेटा? तो therefore s किसके बराबर आएगा? s is equal to ut प्लस यहाँ बेटा लिखेंगे 1/2 at स्क्वायर। What is this? This is second equation of motion. So we have derived here second equation of motion. क्या derive हमने की बेटा? क्या की? यहाँ ये 1D motion है, यहाँ थोड़ा लिखेंगे क्या किया derive? second equation of motion, लेकिन यहाँ थोड़ा लिखेंगे ना, यहाँ मिल गया था। तो बेटे यहाँ लिखेंगे ये a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है यहाँ, तो ठीक है ना, ये 1D मोशन है, और 1D मोशन का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन, बट व्हेन a रिमेन्स कांस्टेंट। यही है, यही यहाँ चल रही है ना गाड़ी एक एक्सिस की तरह। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव हियर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सी डियर स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है बेटा? मजा, हाँ मजा आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन, फिजिक्स मजेदार है, जूसी है, बहुत जूसी है फिजिक्स, ड्राई नहीं है बेटा। डोंट टेक इट एज बर्डन, एंजॉय फिजिक्स। देखो बेटा क्या करेंगे डिराइव आप? तो डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिराइव क्या डिराइव करना है? डिराइव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and s is displacement. S is not distance, s is displacement. S is displacement, not distance, s is displacement. Keep this thing in mind.
बट फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। किताबों पर लिखा है डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअली है क्या डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेरी नाइस। न्यूमेरिकल में ये डिस्प्लेसमेंट काम करता है। न्यूमेरिकल में क्या काम करता है, डिस्प्लेसमेंट की तरह काम करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। देखो बेटे क्या है, आप इसको डिराइव करेंगे, डिराइव बाय, आपको पता है कौन सा मेथड, कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड बेटा, कैलकुलस मेथड, दैट इज यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। लेकिन मैं करता हूं यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज, फिर इसके बाद करेंगे इंडेफिनिट, ठीक है ना, इंडेफिनिट भी दिखाएंगे आपको। चलो यहाँ सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन क्या आएगा बेटा, शाबाश जल्दी कहो। वी नो, क्या पता है आप लोगों को, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। एक्सेलरेशन किसकी बात है, dv by dt। बेटा एक्सेलरेशन किसकी बात है, dv by dt। तो यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू डी, क्या भी लिख सकता हूँ, dv by dt, खत्म। यहाँ डी की कहीं नहीं है, टी कहीं नहीं है यहाँ, टी। तो टी को खत्म करना है, किसको खत्म करना है, इक्वेशंस लिखने हैं, बट वी हैव टू एलिमिनेट हियर टी, क्योंकि यह इक्वेशन में बिल्कुल टाइम कहीं नहीं है। तो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा ये, ऐसे लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा डी बाई डी टी को डी वी बाई डी एक्स इन टू डी एक्स बाई डी टी। देखो बेटा ये dx और dx कैंसिल हो जाएगा, और अगेन क्या रह जाएगा, डी बाई डी टी, क्या रहेगा, डी बाई डी टी। लेकिन मुझे टाइम खत्म करना है, इस टाइम को खत्म करना है, कैसे, क्योंकि dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ x मीन्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बेटा वो होती है वेलोसिटी, ठीक है ना। बात आई समझ में, क्या लिखा है, dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, dx और dx क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अगेन डी बाई डी टी। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, डी टी खत्म हो जाएगी। देखो क्या, ये dx बाई डी टी बेटा v के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, v के। देयरफॉर बेटा a लिखूंगा यहाँ dv बाई डी एक्स, लेकिन ये किसके बराबर है, dx बाई डी टी, v, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आई बात समझ में। देयरफॉर मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू, पहले v लिखेंगे, फिर लिखेंगे बेटा dv बाई डी एक्स। बात आई समझ में। a इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी वी, और v मैंने पहले लिखा, फिर बेटा लिखा डी बाई डी एक्स। ओके, आई बात समझ में। हाँ, a किसके बराबर है, v डी बाई डी एक्स। देखो बेटा, देखो आसान, बहुत आसान है ना। देखो बेटा, देखो बेटा, तो देयरफॉर मैंने बेटे लिखा यहाँ a इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स। जबरदस्त इक्वेशन है यहाँ, एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, यहाँ एक्सेलरेशन जबरदस्त इक्वेशन है। वी कैन यूज दिस इक्वेशन इवन इन ए सिचुएशन व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वहां भी यूज कर सकते। ये है इक्वेशन एक्चुअली दीज आर द इक्वेशन। देखो बेटे, यहाँ लिखूंगा थोड़ा आपके लिए, ये याद रखना हमेशा, ये बहुत ज्यादा, ये हर जगह हर सिचुएशन में यूज हो जाएंगे। क्या, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और a इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स। हर सिचुएशन में यूज हो जाएगी, चाहे a कांस्टेंट हो, चाहे a नॉट कांस्टेंट हो, हर जगह एक्चुअली यही इक्वेशंस ऑफ मोशन है। लेकिन ये जो मैं डिराइव करता हूं, द इक्वेशंस दैट आई एम डिराइविंग हियर, बेटे ये इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल इक्वेशंस ऑफ मोशन ये है, लेकिन किसी को पता नहीं है बेटा, है ना। लेकिन ये क्या है, ये हर सिचुएशन में यूज हो जाए, चाहे ये कांस्टेंट हो या ना हो। क्या, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, acceleration rate of change of velocity with respect to time, acceleration v d by dx। यहाँ acceleration is function of time, लेकिन यहाँ acceleration is function of position। लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, चलो ओके। तो ये बहुत जबरदस्त इक्वेशन है, ठीक है ना। लेकिन मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने हैं। देखो बेटा क्या, यहाँ मैं डिवाइड करूंगा 1, तो इसको इसके साथ जरा, और इसको इसके साथ, तो क्या आएगा बेटा, v dv इज इक्वल टू a dx। आई बात समझ में, टाइम है कहीं नहीं, कहीं नहीं है टाइम है। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या करो बेटा, यहां भी इंटीग्रेशन करो, लेकिन डेफिनेट लिमिट्स ले लो, इंटीग्रेशन a dx, लेकिन लिमिट्स ले लो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बट लिमिट्स लेने हैं, कहां से कहां तक करने हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं। तो बेटे यहाँ देखो कहां से कहां तक, dv यहाँ वेलोसिटी में है ना, तो वेलोसिटी क्या, इनिशियल वेलोसिटी u, और आखिर कहां से कहां तक चेंज हो रहे हैं, आप फाइनल वेलोसिटी v एट पॉइंट b। तो यहाँ इंटीग्रल u टू v, u कहां से कहां तक है, u टू v, लेकिन यहाँ dx में यहाँ क्या लिखेंगे, x नॉट टू x, यहाँ इंटीग्रल dx में, तो लिमिट्स लेने हैं यहाँ से यहाँ तक x नॉट, और ये b पॉइंट कितनी दूरी पर है x,
तो मोशन कहां से कहां तक है, एक्स नॉट टू एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट एक्स। लेकिन वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है, चेंज यू टू वी। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, एक्स नॉट टू एक्स, एक्स नॉट टू एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा क्या है, क्या कर रहे हैं यहाँ, देखो बेटा तो ये किसके बराबर आएगा, बहुत आसान, वी डी वी। ऐसे मैंने लिखा था बेटा, ऐसे एक्स डी एक्स किसके बराबर है, एक्स डी एक्स 1+1 डिवाइड बाई 1+1 वो होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। देयरफॉर ऐसे ही बता बेटा क्या है, वी डी वी किसके बराबर आएगी, वी डी वी, ये एक्स डी एक्स है तो वी डी वी वी 1+1 डिवाइड बाई 1+1, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। इंटीग्रेशन वी डी वी किसके बराबर आएगी, वी 1+1 डिवाइड बाई 1+1 वही आएगा वी स्क्वायर बाई 2। क्या लिखेंगे वी डी वी के बजाय, वी डी वी के बदले क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाई 2। तो लिमिट कहां से कहां तक, स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, यू बेटा यहाँ यू यहाँ वी। ओके वेरी नाइस, हैव यू गॉट दिस, यस सर। देखो बेटे क्या है, तो यहाँ क्या करना है, एज कांस्टेंट बाहर निकालो और इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या आएगी बेटा, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। लेकिन यहाँ कहां से कहां तक लिमिट, एक्स नॉट टू एक्स। देखो बेटा तमाशा, ये लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है, वी स्क्वायर बाई 2, रिपीट करेंगे इस स्टेप। तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ u और यहाँ v इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, x। लेकिन लिमिट कहां से कहां तक, x नॉट लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, x। ओके वेरी नाइस। देखो क्या है, वी आर नाउ वेरी क्लोज टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो बेटा क्या है, देखो क्या है, ये 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर ले लो, लेकिन अंदर क्या रहा है बेटा, वी स्क्वायर, लिमिट्स क्या है u टू v, और यहाँ क्या है a। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लो, x माइनस एक्स नॉट, x के बदले x, अपर लिमिट ले लो यहाँ माइनस फार्मूला का, फिर x के बदले क्या दे दो, x नॉट। तो बेटे यहाँ के 1/2 मैंने बाहर लिया, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ। तो यहाँ के यहाँ आप शॉर्ट ब्रैकेट लिखो, अपर लिमिट v दे दो यहाँ v स्क्वायर फार्मूला का माइनस, अब v के बदले क्या, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो 1/2 बेटे क्या है यहाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 2x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट, ये बेटे किसके बराबर है, s। तो यहाँ लिखेंगे 2s। तो वी हैव गॉट दिस। तो ये 2 यहाँ सीधे लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो नीचे वाला जो यहाँ डिवाइड है ना वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं यहाँ क्या है, एक ये ए है बेटा, ये ए है यहाँ ए, ये 2 नहीं है, क्या है ए है यहाँ ए। तो ए इंटू ऐसे यहाँ बेटा, तो यहाँ डिवाइड में क्या है, यहाँ डिवाइड 1/2 ऐसे ही लिखिए, 1/2 इंटू ये रिपीट करेंगे क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ज़रब है ना यहाँ, तो यहाँ डिवाइड है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये यहां जाएगा तो 2as, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहां जाएगा 2as, एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। But for a body which is moving with uniform acceleration in a straight line or in 1D, okay, I got this. But I use it here definite integration. क्या मैं करूंगा इंडेफिनिट इंटीग्रल यूज, एक दिखाऊंगा फिर बाद में घर में खुद कर लो, यही है बस, इतना ही कुछ, इतना सब कुछ है, चाहे डेफिनेट इंटीग्रल यूज करो या इंडेफिनिट, यही है, मैंने डेफिनेट किया यूज। लेकिन थोड़े दिखाएंगे कि इंडेफिनिट कैसे यूज करना होता है, क्योंकि बाद में न्यूमेरिकल में ये मेथड वो मेथड न्यूमेरिकल में काम आएगा, वो भी थोड़ा, इससे आपकी जो है ना प्रैक्टिस बढ़ती है टू हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स देयर इन द इनकमिंग चैप्टर्स आर रिलेटेड टू दिस। ओके डियर स्टूडेंट, सी देखो बेटे क्या है, देखो सीरियल। अब थोड़ा क्या यूज करेंगे, मैंने इससे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज की, लिमिट्स यूज की, अब थोड़ा क्या यूज करेंगे इसमें, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा यूज करेंगे, थोड़ा समझाएंगे आपको कि कैसे सॉल्व क्वेश्चन करने होते हैं। हमने अमेरिका क्वेश्चन खत्म हुआ बेटा, जो करना था ना डिराइव वो किया, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए कि किसी जगह किस तरह हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रेट इंटीग्रेशन, कैसे डिराइव करेंगे। देखो बेटा, सपोज यहां डिराइव करेंगे, यही डिराइव क्या करने, डिराइव b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई कैलकुलस मेथड, लेकिन कैलकुलस मेथड ये है, लेकिन क्या इंटीग्रेशन आप कौन सी इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इनडेफिनिट। इससे पहले मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज की, लेकिन आप क्या यूज करना है, इनडेफिनिट। बेटे क्या यूज करना है, इनडेफिनिट। देखो क्या कैसे यूज करेंगे, इनडेफिनिट। अब डेरिवेशन देखो, थोड़ा देखो बेटा, डेरिवेशन कैसे, ऐसे करेंगे, ऐसे वी नो, यही लिखो वी नो, क्या लिखो वी नो,
बेटा आपको पता है कि एक्सेलरेशन इन स्ट्रेंथ एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब डिवाइड कुछ ना हो तो 1 लिखो, इसको इसके साथ जरा और इसको इसके साथ जरा, dv इज इक्वल टू a इंटू dt, तो a dt बेटा है। ओके, अब यूज क्या करना है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपकी खातिर किया, वरना नहीं दिखाना था, लेकिन थोड़ा आपको समझ में आएगा कि हाउ टू यूज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहां क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ, क्या करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लेकिन इससे पहले मैंने लिमिट्स ले लिए, अब लिमिट्स नहीं लेने हैं। इंडेफिनिट का मतलब है कि वी डोंट नो इट इज वैल्यू डेफिनेटली, लेकिन डेफिनेट का मतलब है कि वी नो इट इज एग्जैक्टली इट इज वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल वी एग्जैक्टली नो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बताया, मैंने बेटा ऑलरेडी इसके बारे में आपको जानकारी दी है जब हमने कैलकुलस किया है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की, वहां याद है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, किसके लिए लग रहा था? इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि वी डोंट नो डेफिनेटली द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द डेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल का आंसर 100% वही होता है। और वहां जो लिमिट्स थे ना, लिमिट्स यूज करते थे, याद है? कुछ याद है? हाँ हाँ याद है सर। तो देखो बेटे क्या है, तो इंडेफिनिट यूज करेंगे, dv इज इक्वल टू a dt, तो यहां भी इंटीग्रेशन लगाएंगे dv, तो यहां भी इंटीग्रेशन, तो लिमिट्स अब नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट्स होते हैं डेफिनिट इंटीग्रल में, लेकिन लिमिट्स नहीं होते हैं किसमें? इंडेफिनिट में। और इसका आंसर बेटा 100% हम नहीं जानते। हम क्या करते हैं? वे यूज प्लस सी, क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन यहां कहीं किया नहीं किया, डेफिनेट में किया नहीं किया बेटा, लेकिन किसमें यूज करना है? यहां लिखो बेटा, अपना ही लिखो प्लस सी। क्यों अपना? क्यों? बिकॉज वी डोंट नो। यहां भी प्लस सी आता, प्लस C1 माइनस C1 प्लस, लेकिन एक ही लिखा मैंने इस साइड में, क्योंकि अगर यहां सपोज यहां dv प्लस यहां C1 और यहां a dt प्लस बेटा C2 या माइनस C2, लेकिन अगर आप यहां ले लोगे ना, यहां dv इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt, यहां ये प्लस C2, यहां माइनस C1 आता, तो अगेन ये कांस्टेंट आता, तो इसलिए एक ही कांस्टेंट लिखो एक साइड में। ओके, हैव यू गॉट दिस? यस सर, वी हैव गॉट दिस। तो याद रखो, जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है ना, इंडेफिनिट, तो प्लस ही लिखो। क्या लिखो? प्लस ही। क्या लिखो? प्लस ही। तो यहां के dv ये v आएगा बेटा, तो a बाहर करो और इंटीग्रेशन ऑफ dt ऐसे लिखो, और प्लस c यहां लिखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका। व्हाट इज c हियर इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है c? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात आई समझ में बेटे? नहीं आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ सर, आई बात समझ में। तो देखो बेटे क्या है, v इज इक्वल टू a t प्लस c। आप इसकी इक्वेशन लिखो, यहां फर्स्ट आपने लिखी, यहां सेकंड लिखो। a इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आएगी? t प्लस c। नाउ द c is unknown. c is, we don't know, because c is a constant. It may be 2, it may be 3, it may be 0, it may be 100. Now how we have to calculate this c in the numericals? We have to calculate c from initial conditions. याद रखो, we have to calculate c from initial conditions. We have to find c from initial conditions. याद रखा? हाँ बेटे याद रखा। तो देखो, the value of c is found from numerical में ये काम आएगा। The value of c is found from कहाँ? From initial conditions. This is unknown, लेकिन but we have to make it known. कहाँ known हो जाएगा? Where the value of c is found from initial conditions. तो बेटा initial conditions क्या है? बताओ, what are initial conditions? Initial conditions क्या है? That is when t is equal to 0, velocity is u and displacement is x naught. क्या है बेटा? शाबाश। What are initial conditions? That is t is equal to 0, then v is equal to initial velocity, and displacement कितना होता है? and displacement is x naught. यहां से यहां तक कितना दूर है? x naught. ओके, आई बात समझ में? These are initial conditions. इन्हीं initial condition में क्या हम मालूम कर सकते हैं? The value of c. The value of c is found from initial conditions. वो क्या है initial condition? यहाँ initial condition t क्या है? 0. इसमें velocity क्या होती है? initial velocity. ये initial velocity है, ये initial velocity. और इस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पार्टिकल का फ्रॉम ऑरिजिन? x naught, s is x naught. These are initial conditions. Put these values in equation second. Substitute these values कहाँ? किस पर रखो? किस में रखो? In equation second. क्यों? To find the value of c. Because the value of c is found from initial condition. तो v के बदले क्या लिखोगे? u. a इंटू, लेकिन t के बदले क्या लिखोगे? 0 इनिशियल कंडीशन प्लस c। आई बात समझ में? हाँ बेटा, आई बात समझ में। तो किसके बराबर आएगा c? therefore u is equal to a00, तो c का वैल्यू क्या है? u. नाउ अगेन सबस्टिट्यूट
substitute this value in equation second. Now again, तो c का therefore c किसके बराबर है? therefore c किसके बराबर है? c therefore c u के बराबर है. Substitute again this in equation number second. Substitute again in equation second. तो इक्वेशन सेकंड क्या आएगी? बता बेटा, जल्दी बता क्या आएगी? बता क्या आएगी? वो किसके बराबर थी? इसके बराबर थी, भी निकाली थी ना. क्या निकाली थी? v इज इक्वल टू 8 लिखा था ना, 80 प्लस या c था. तो c के बदले आप क्या लिखना है? c ये थी ना इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड थी, ये थी इक्वेशन सेकंड. v इज इक्वल टू 80 प्लस c. अब v इज इक्वल टू 80. आप इस c के बदले क्या लिखो यहाँ? u. तो बेटे क्या आ गया? देयरफॉर v इज इक्वल टू, पहले u लिखो फिर 80. सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. मैंने पहले c का वैल्यू निकाला और c का वैल्यू फिर इसी इक्वेशन में दे दिया c के बदले. इसी इक्वेशन में c का वैल्यू u तो आ गया. आई बात समझ में? दूसरी इक्वेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन तीसरी इक्वेशन घर में करो, ठीक है ना भाई? क्या मेथड यूज करूंगा? इंडेफिनिट. देखो बेटा क्या करना है? डिराइव. दयम दूसरी है ना, दूसरी. तो डिराइव क्या करनी है? डिराइव s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बाय कौन सा मेथड? बाय कैलकुलस मेथड. लेकिन किस टाइप की इंटीग्रेशन? इंडेफिनिट. कौन सा मेथड? इंडेफिनिट इंटीग्रल यूज करो. देखो बेटा थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक, तीसरी इक्वेशन घर में करना. तीसरी इक्वेशन कहां करना? घर में. देखो बेटा, तो सेकंड करेंगे यहां, डेरिवेशन इसकी करेंगे. डेरिवेशन वी नो, क्या पता है बेटा? वी नो क्या पता है? दैट इज v इज इक्वल टू ds बाई dt. पता है ना, v इज इक्वल टू ds बाई dt. डिवाइड करो 1. तो इसको इसके साथ जरा, इसको इसके साथ जरा. तो ds वन ds v इंटू dt v dt है ना. इसकी लिखो फर्स्ट. बट बेटा हमको पता है, बट v इज इक्वल टू u प्लस at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इसकी लिखो यहाँ नंबरिंग सेकंड, सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट. लेकिन किसके बदले? v के बदले दे दो सब्स्टिट्यूट. दे दो सब्स्टिट्यूट. बेटा पता है किसके बाद? देयरफॉर सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट. तो क्या आएगा? देयरफॉर ds किसके बदले आएगी? v के बदले क्या लिखो? u प्लस at dt. ठीक है ना. तो इंटीग्रेशन करो बोथ साइड्स. क्यों? v के बदले क्या लिखा? u प्लस at dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करो इंटीग्रेशन. लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो यहां भी इंटीग्रेशन लगा दो ds और यहां भी इंटीग्रेशन लगा दो u प्लस at बेटे यहां dt. लेकिन लिमिट्स नहीं लेने हैं क्योंकि डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं. तो खुद क्या लिखना है यहाँ बेटा? खुद क्या लिखेंगे यहाँ? प्लस c. क्या लिखेंगे खुद? यहाँ लिखो नो प्रॉब्लम. प्लस c because we don't know the exact values of this definite integral. That is why we put here plus c. तो क्या आएगा बेटा? This c is found from what is c? c आपको पता है. This c is constant of integration. c क्या है? Constant of integration. What is c here? Constant of integration. The value of c is found from, इसकी लिखो बेटे है फर्स्ट इक्वेशन. देखो इसको. The value of c is found from initial conditions. The value of c is found from initial conditions. The value of c is found from बेटा क्या है? Initial conditions. What are initial conditions? Initial condition आपको पता है क्या है? Initial condition बताए बेटा. Initial condition क्या है? What are initial conditions? What are initial conditions, dear students? That is when t is equal to 0. When t is equal to 0, then v is equal to velocity, initial velocity के बराबर होती है initial velocity, and x displacement किसके बराबर होता है? x naught. These are initial conditions. Okay. लेकिन पहले इसको सॉल्व करो फिर c का वैल्यू निकालो. ये इनिशियल कंडीशन है. चलो छोड़ दो. आप इसको सॉल्व करो फिर c का वैल्यू कहां मिलेगा आपको? इनिशियल कंडीशन में कहां मिलेगा? तो पहले इसको सॉल्व करेंगे. देखो बेटा, व्हाट इज c? c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और इसका वैल्यू कहां मिलेगा? इनिशियल कंडीशन में. फिलहाल इसको क्या सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इनिशियल कंडीशंस यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. लेकिन पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे. तो ds किसके बराबर आएगा? ds s के बराबर. और ut कितने इंटीग्रल्स बनेंगे? 2 u इंटीग्रेशन ऑफ u dt 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ प्लस है ना, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ at dt. इंटीग्रेशन ऑफ at dt. आई बात समझ में? हाँ सर आई बात समझ में. आसान क्वेश्चन. लेकिन प्लस क्या है? लेकिन प्लस बेटा यहाँ क्या लिखना है? प्लस लिखना है c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये किसके बाहर आएगा? s u ये मेरे बाहर क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बाहर आएगी? t. u मैंने बाहर किया. इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बाहर? t. a बाहर करो और इंटीग्रेशन किसकी करनी है? t dt प्लस यहाँ c. a मैंने बाहर किया, कांस्टेंट है ये.
तो एस किसके बराबर आएगा, एस एस यू टी प्लस ए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी टी स्क्वायर बाई 2, मैंने दिखाया था यहाँ दिखाया था, डी डी वी स्क्वायर बाई 2 टी डी टी टी स्क्वायर बाई 2 एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 टी 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 2, ठीक है। यहाँ क्या है बेटा, यहाँ प्लस सी है। नाउ द वैल्यू ऑफ सी इज फाउंड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, इसी की लिखो 1, सॉरी इसकी तो पहली वाली थी ना, इसका 1 मत लिखो, चलो इसका 1 लिखा आपने, इसकी लिखो सेकंड, नो प्रॉब्लम, लिखो सेकंड, क्योंकि अब आपने नंबरिंग दे दी, लिखो सेकंड। नो द वैल्यू ऑफ सी कहाँ मालूम करेंगे, वैल्यू ऑफ सी इज फाउंड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। अब लिखो इनिशियल कंडीशन, फ्रॉम कहाँ, इनिशियल कंडीशन। क्या इनिशियल कंडीशन, व्हाट आर इनिशियल कंडीशंस बेटा, द वैल्यू ऑफ सी इज फाउंड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, व्हाट आर इनिशियल कंडीशंस, बता इनिशियल कंडीशंस क्या है बेटा, बता जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम बहुत हुआ टाइम। तो इनिशियल कंडीशंस ये है कि बेटा द वैल्यू ऑफ सी इज फाउंड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, दैट इज t is equal to, when t is equal to 0, then velocity is equal to initial velocity and s is equal to x naught. When t is equal to 0, velocity is initial velocity and s किसके बराबर है इस वक्त, s is equal to x naught, s is equal to x. These are initial conditions. Substitute these in equation second. Substitute these in equation second. Equation second में substitute करो, so that we can find the value of c. क्या आएगा c, बताओ c किसके बराबर आएगा। तो यहाँ x के बदले क्या लिखेंगे, x नॉट इज इक्वल टू, तो ut के बदले क्या लिखेंगे, ut के बदले बता बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, शाबाश, u इंटू टी तो 0 है, प्लस बेटे क्या लिखेंगे यहाँ, शाबाश क्या लिखो यहाँ, शाबाश क्या लिखो यहाँ बेटा, शाबाश, हाँ लिखो जल्दी लिखो। तो a क्या है, a बता, a इंटू यहाँ है ना टी के बजाय अगेन 0/2, क्योंकि 0 है ना यहाँ टी, प्लस सी, बता सी किसके बराबर आएगा, बता सी किसके बराबर आएगा, ओ चोरा बता सी किस। लेकिन देखो बेटा यहाँ s इज इक्वल टू 0, लेकिन ये x नॉट हमारे लिए क्या है, ये x नॉट हमारे लिए 0 है, क्योंकि मोशन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, x नॉट तो है बेटे, लेकिन मैंने s में लिखा है, ये किस में लिखा मैंने, मुझे ये s जो मैंने लिखा ना वो x में लिखना था, किस में लिखना था, x में, मैंने वो s में लिखा, इसीलिए s इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू 0। देखो बेटा क्या किया मैंने, मुझे ये s लिखना था, वहां ds मैंने लिखा ना, वो एक्चुअली x माइनस x नॉट है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ d, यहाँ देखो, यहाँ बेटा यहाँ देखो क्या है, ds तो निकाला था ना मैंने, यहाँ क्या लिखा था, CCDR, एक मिनट, s किसके बराबर, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर है ना, प्लस c, लेकिन ये s एक्चुअली है किसके बराबर, x माइनस x नॉट, कुछ आई बात समझ में, s किसके बराबर है, x माइनस x नॉट, और ut प्लस 1/2 at स्क्वायर प्लस c। अब इसमें इसको सब्स्टिट्यूट, सॉरी इसको लिखो 2, अब यूज करो क्या, अब सब्स्टिट्यूट क्या करो, substitute these values in equation second, मैंने s यहाँ बेटा क्या लिया, सॉरी s ले लिया क्या, x माइनस x नॉट इज इक्वल टू, यही लिखा ut प्लस 1/8 स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ ये वैल्यूज ये substitute these in equation second, s तो यहाँ x माइनस x नॉट में लिखो, और कुछ नहीं बेटा। तो x के बदले क्या लिखेंगे यहाँ, x के बदले क्या लिखेंगे, ये छोड़ दो, x के बदले क्या लिखेंगे यहाँ, x नॉट माइनस x नॉट, यहाँ u t के बदले क्या लिखेंगे बेटा, 0 प्लस 1/2 a, और t के बदले क्या लिखेंगे, t के बदले यहाँ 0 स्क्वायर प्लस c। तो बेटा x नॉट माइनस x नॉट इज 0, तो ये 0 प्लस ये भी 0 प्लस c, तो c देयरफॉर c किसके बराबर है, 0, c किसके बराबर है। तो अगेन करो सब्स्टिट्यूट, इसको किसमें करो अगेन सेकंड में, तो आपको मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा बेटा आपको, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन, सब्स्टिट्यूट अगेन इन किसमें करो, सब्स्टिट्यूट अगेन इन इक्वेशन, किसमें डालूं, सेकंड में, किसके लिए, सी के लिए। तो देयरफॉर बेटा ये किसके बराबर आएगा, x माइनस x नॉट इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर प्लस c के बदले 0, तो ये x माइनस x नॉट s के बराबर है, x माइनस x नॉट किसके बराबर है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ट्राई करो घर में बेटा, ट्राई करो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो रिपीट करूंगा, देखो कैसे क्या करना है। देखो मैंने थोड़ा जो यहाँ हुआ ना गड़बड़ हुआ था, थोड़ा गड़बड़ नहीं हुआ था बेटा, देखो क्या है, s मैंने लिखा था ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, देखो बेटा प्लस यहाँ सी था, लेकिन s क्या है यहाँ, देखो s इज इक्वल टू x माइनस x नॉट, ut प्लस 1/2 जो मैंने पहले दिखाया आपको at स्क्वायर प्लस c, इसकी लिखो सेकंड, और लिखो यहाँ द वैल्यू ऑफ c इज फाउंड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, फिर लिखो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x नॉट, और बेटा फिर लिखो
v इज इक्वल टू यू। तो यहाँ x नॉट तो ये 0 आएगा, तो सब कुछ यहाँ c का वैल्यू क्या आएगा 0, वो वापस इसी में दे दो, तो फिर यहाँ s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 at स्क्वायर आएगा। होप यू हैव गॉट दिस। तो लास्ट इक्वेशन जो है ना v स्क्वायर माइनस यू, घर में ट्राई करो इंडेफिनिट इंटीग्रल यूज करना। मैंने दोनों तरीके दिखाए, क्यों दिखाए, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में काम आ गया। होप यू हैव गॉट दिस। अगर कहीं कंफ्यूजन है कहना, मैसेज करना, नो प्रॉब्लम, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ माय टुडेज, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ माय टुडेज टॉपिक। ओके।